corporate tax planning, what is happening? Okay, in corporate tax planning, different types of planning we will do. Okay, corporate tax planning, that means what is corporate? Corporate means related to corporate world. We are in the corporate world. Okay, here either we are dealing with companies or we are doing with LLPs and partnership firm and all these things. We are not talking about the proprietorship firm. In proprietorship firm, you can save money by many ways, but in corporate world, you have to make proper planning, proper adjustment. Sometimes, suppose you can get huge benefits of depreciation. You can purchase assets for scientific research, and thereafter you are selling it. You can use any business. Suppose you are running some agriculture activities. So how you will save maximum and maximum tax? So that you have to make the proper planning. That is called corporate tax planning. It is a very vast concept. ये बहुत बड़ा vast concept है. So in corporate tax planning, today we will do business expense. It is very easy. Only one problem will solve your whole problem. एक ही problem से तुमको सब problem बनाना भी आ जाएगा. ठीक है. Business expansion, what we will do? It means corporate business expansion. That means corporate structure. I am talking about the corporate structure. Okay. Corporate structure. I am talking about the corporate structure. Corporate structure means suppose we want to expand our business. Expand our business. When we want to expand our business, then what will happen? Business को जब हम लोग expand करना चाहते हैं, then क्या कर सकते हैं? For business or expand, we need money. Need money. And that money should be given by, we can have many forms. इस फॉर्म्स को लेने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है. आइदर बाय इक्विटी शेयर्स, आइदर वी टेक मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, और वी टेक मनी फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स, और वी इशू डिवेंचर्स, या तो हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, और वी टेक लोन. These are the 4 methods. These are the 4 things. माने ये मेजॉरिटी है कॉर्पोरेट में कि हमको अगर पैसा चाहिए बिजनेस एक्सपेंड करने के, तो आइदर वी इशू इक्विटी शेयर्स, और वी इशू प्रेफरेंस शेयर्स, और वी इशू डिवेंचर्स, और वी टेक लोन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और बैंक. Either we take loan from bank or from private institution. So through this method, through this way, we can able to expand our business. Now in corporate tax planning, different proposals will be given by your board of directors. Board of directors will give you different proposals, and which proposal will be best for you. That is the main theme in business expansion. Business expansion का main theme यही है. Business expansion में हम लोग को पता करना है कि कौन सा proposal हम लोग accept करेंगे. So do you have to find out, because as you are the shareholders, so from shareholder points of view, you have to think about and make the corporate structures. You have to think about the corporate structure, because as a shareholder, you will invest in equity shares. Either you will invest in preference shares, or you will invest in debenture. And when you take loan, that means other private party, a bank will think about that. So what will be the inventory? Your EPS. EPS you have to find out. EPS means earning per share. Either you find out earning per share, whose earning per share is greater, जिसका सबसे बड़ा होगा, that proposal will be accepted. Earning per share or greater, whose EPS is greater or highest, that proposal will be accepted by the board of director. उसी को हम लोग accept करेंगे. या फिर हम लोग निकाल सकते हैं percentage. इसका percentage निकाल सकते हैं profit after, ठीक है, profit after, ठीक है, tax and dividend. Profit after tax and dividend divided by equity share capital, divided by equity share capital into 100. इसका परसेंटेज निकाल लो. इसमें जिसका हाईएस्ट परसेंटेज आएगा, जिसका हाईएस्ट परसेंटेज आएगा, उसी को ही हम लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे. वही प्रपोजल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. When we will do the problem, just now we will start our problem, then you can better understand it. You have already done this in what? In leverage chapter. When you have done FM, financial management leverage chapter, you have done this type of things there. Okay, you have calculated the EPS, and same things you have to do in this business expansion or corporate structures. Okay, so we will do only 3 problems that will be solve all the corporate structure of business expansion solutions. In your exam, you can able to solve all the questions of this type. तुम अपने एग्जाम में सब तरह का क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकोगे. Okay, so we will start with problem number 1. Okay, the directors of domestic company
whose existing capital is 1 crore, all in equity shares, proposes to expand its business for which an additional investment of 50 lakhs would be needed. The entire money can be raised either by issue of equity shares or by issue of 10% debentures. They decide in favor of issue of equity shares. As a tax consultant, do you approve the proposal? Assume the rate of return is 20% and the rate of income tax is 30%. Assuming the rate of return is 20% and rate of income tax is 30%. 30% income tax का return rate दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो you will assume 31.2%. Okay, but 30% plus surcharge. Okay, sorry, 30% plus health and education says 4%. That will come to 31.2%. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखो, already we have 1 crore as existing capital. हम लोग का 1 crore existing capital already है. We have already 1 crore as existing capital. हम लोग का existing capital कितना है? 1 crore already मेरा existing capital है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 1 crore existing capital मेरा जब पहले से ही है, तो अब हमको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 50 लाख रुपीस का जरूरत है. वी नीड 50 lakhs फॉर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस. हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 50 लाख रुपए का जरूरत है. तो 50 लाख रुपए का जो हम लोग को जरूरत है वो कैसे लाएंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट. कैसे हम लोग बिजनेस में लेके आएंगे, यही हम लोग को जानना है. ठीक है, बिजनेस में 50 लाख का जरूरत है, वो 50 लाख कैसे आएंगे तो वो हम लोग को जानना है. तो वो 50 लाख लाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करेंगे एक्सपेंशन का एनालाइज कर लेंगे कि मेरा टोटल कैपिटल कितना होगा. व्हाट विल बी माय टोटल कैपिटल. ओके, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना होगा वो हम लोग करेंगे. ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंशन. Analysis of financial expenses. Okay, financial expansion में first of all you have to calculate the total capital structure of your company in different proposal. यहाँ पर मेरा 2 proposal है, एक है option 1 और एक है option 2. One is option 1 and another one will be option 2. पहला option में already we have equity share capital. देखो बार बार बता दे रहे, पहले से मेरे पास equity share capital 1 करोड़ का है और 50 लाख हमको और चाहिए. तो मेरा 2 ऑप्शन है, equity share capital and 10% debenture. Equity share capital and 10% debenture. तो already I have 1 lakh equity shares. Sorry, 1 lakh बोल रहे, 1 crore. Already I have 1 crore equity shares and another we need 50 lakhs. ये 50 lakhs हम लोग क्या कर सकते हैं? Either by equity share or by debenture. या तो equity share से देंगे या debenture से देंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 crore 50 lakh is my equity share capital. In option 2, 1 crore is my equity share and 50 lakh is my debenture. So hope you have अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट द टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए. मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए का कैपिटल होगा, 1.5 करोड़ का कैपिटल होगा और वो 1.5 करोड़ का कैपिटल जो है वो कैसे आएगा? ये मेरा किस तरह से आया? पहला में बोल रहा है ऑलरेडी मेरे पास 1 करोड़ था और 50 लाख मेरा जुड़ गया तो 1.5 करोड़ हो गया. ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है? डिवेंचर से लेके आएंगे तो डिवेंचर मेरा 50 लाख रहेगा और मेरा कैपिटल कितना रहेगा? 1 करोड़ ही रहेगा. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कैपिटल. ये मेरा टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर हो गया. दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कैपिटल. ये टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर हो गया. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंशन में टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 करोड़ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 1 करोड़ व्हिच विल बी ऑलरेडी देयर एंड न्यू फ्रेश इशू विल बी फ्रॉम द डिवेंचर. यानी हम नया पैसा जो लाएंगे या तो इक्विटी शेयर इशू करके लाएंगे या डिवेंचर इशू करके लाएंगे. तो हम लोग इक्विटी शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसा लाने का सोचे हैं. अब हमको क्या बोल रहा है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द earning before interest and tax, EBIT. Always calculate the EBIT. The EBIT कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख दिया कि assuming the rate of return is 20%. हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है. यानी that means EBIT will be my 20%. Earning before interest and tax will be 20%. माने मेरा अगर 1.5 करोड़ का कैपिटल है तो 1.5 करोड़ का 20% मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा. अगर मेरा 1.5 करोड़ का कैपिटल है तो 1.5 करोड़ का
20% विल बी माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 1.5 करोड़ का 20% विल बी माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल सकते हो। यू कैन टेल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। पीबीआईटी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा 30 लाख रुपीज विल बी माई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 30 लाख रुपीज मेरा ये हो जाएगा। ईबीआईटी मेरा कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपीज। ईबीआईटी विल बी माई 30 लाख रुपीज। तो ईबीआईटी जब मेरा 30 लाख रुपीज हो जाएगा, देन व्हाट वी विल डू, अब हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हम लोग को निकालना है इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज। देन वी विल एबल टू फाइंड आउट। तो वो कैसे करेंगे, देखो पर्टिकुलर्स। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, अमाउंट इन रुपीस। ओके, यहाँ लिख देते हैं रुपीस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ईबीआईटी भी लिख सकते हो। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 30 लाख एंड 30 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30 लाख और 30 लाख, ठीक है। अब उससे हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट। लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। तो पहला ऑप्शन में देखो इंटरेस्ट नहीं है, पहला ऑप्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, देख लो। There is no debenture, so no debenture interest will be there. But in second option 50 lakhs in debenture is there, so debenture interest we have to paid. तो पहला ऑप्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन में मेरा इंटरेस्ट है, उस दूसरा ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना? 50 lakhs है। 50 lakhs का 10%, दैट मीन्स 5 लाख इज माई डिवेंचर इंटरेस्ट। 5 लाख रुपया मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट है। तो ये मेरा आ जाएगा 30 lakhs और ये मेरा आएगा 25 lakhs, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट विल बी दिस? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरा बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग लेस करेंगे टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अब हम लोग लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। 30% मेरा टैक्स हम लोग लेस करेंगे। तो 30 लाख का 30% निकाल लो, ठीक है। 30 लाख का 30% 9 लाख रुपीस, और 25 लाख का 30% 7.5 लाख रुपीस, 7,50,000, ठीक है। तो ये निकल गया। इसको अब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 लाख और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 17,50,000। तो ये तुम्हारा आ गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन इट विल कम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम लोग को लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, बट सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट देयर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा है नहीं, लेकिन हम लिखना इसलिए सिखा रहे हैं, दैट मीन्स यू विल बी इन मेमोरी, तुम्हारे मेमोरी में रहे कि हमको प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करना है, और साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लेस करना पड़ता है, डीडीटी। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट मिलेगा। इन ऑप्शन नंबर 1 21 लाख, इन ऑप्शन नंबर 2 17,50,000। ऑप्शन नंबर 1 में 21 लाख और ऑप्शन नंबर 2 में ये मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, परसेंटेज में रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा? पीबीटी डिवाइडेड बाय, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे 21 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,00,000 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 17,50,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ है। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1 करोड़ रुपीज है। तो ये करेंगे तो क्या किए? 21 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़। तो इसको हम लोग करते हैं 21 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। 21 लाख
डिवाइडेड बाई 1.5 करोड़, तो ये तुम्हारा आ गया 14%। दूसरा क्या, 17,15,000, ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो ये आ गया तुम्हारा 17.5%। ये कितना आ गया, 17.5%। दैट मीन्स ऑप्शन 1 का रिटर्न जो है, ठीक है, ऑप्शन 2 में मेरा रिटर्न सबसे ज्यादा है। ऑप्शन 2 का रिटर्न कितना है, 17.5%। सो हम लोग उसी को ऑप्ट करेंगे। समझ में आ गया? ओके, सिंस, यहाँ लिख देते हैं, सिंस ऑप्शन 2, ठीक है, ऑफर्स द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, ऑफर्स द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, ओके, सो company should opt the same. So company should opt the same. Hope you will understand. Is there any query? If you have any query, you can tell me. Otherwise, I will proceed with another problem. Okay. अगर कोई query है तो बताओ. If you have any query, otherwise I will proceed with another problem. So very easy problem. You have to start with EBIT. From EBIT, you have to deduct interest. From interest, thereafter you will get profit before tax, and from profit before tax, you have to deduct tax. Thereafter, you will get PAT. From PAT, you will deduct dividend, either preference dividend and DDT. Okay. Thereafter, you will get profit available to equity shareholder. That will be the final profit which will be available to equity shareholders, and you will calculate the rate of return in percentage. What will be the formula for rate of return in percentage? Profit available to equity shareholder divided by equity share capital. Equity share capital से divide करना into 100. तो जो रेट आएगा उस रेट में जिसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा, that proposal should be accepted. उसी प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. That proposal should only be accepted. Okay. Next. Tirath Limited is a widely held company. It is currently considering a major expansion of its production facilities, and the following alternatives are available. ठीक है, Tirath Limited एक widely held company है, उसका expansion चाहिए. He wants to expand his money. The company want to expand its production facilities. So they are thinking for different proposals and alternatives. First alternative is their alternative 1. Alternative 1 में क्या बोल रहा है? शेयर कैपिटल होगा 10 लाख रुपया, डिवेंचर से पैसा लेंगे 15 लाख रुपया, और 18% बैंक लोन से लेंगे 25 लाख रुपया. तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 50 लाख. देख लो, 50 लाख. सेकेंड अल्टरनेटिव में बोला शेयर कैपिटल से 20 लाख लेंगे, डिवेंचर से 20 लाख लेंगे, और बैंक से लोन लेंगे 10 लाख रुपए का. और थर्ड प्रपोजल में बोल रहा है कि टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड, विल बी टेकन फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल. टोटल अमाउंट हम लोग शेयर कैपिटल से लेंगे. द टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल. पूरा ही अमाउंट हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से निकालने का चेष्टा करेंगे. तो expected return before tax is 30%. Rate of dividend of the company since 2000 has not been less than 22%, and the date of dividend declaration is 30 June every year. Corporate tax rate is 30%. Which alternative should the company opt with reference to planning? यहाँ पर corporate tax rate दिया है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? 4% और ऐड करेंगे, यानी 31.2% निकालेंगे. 4% मेरा क्या है? यानी 30% मेरा टैक्स है, और 4% उसके ऊपर में क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा 31.2%, यानी टैक्स रेट मेरा हो जाएगा 31.2%. तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? वेरी इजी. वही टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है एनालिसिस, वो सबसे पहले बनाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द एनालिसिस. ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंशन. फाइनेंशियल एक्सपेंशन जो करे उसका एनालिसिस करेंगे. बहुत अच्छा है, यहाँ बना के दे ही दिया है, बट स्टिल यू विल डू इन योर प्रॉब्लम. तुमको सॉल्यूशन में बनाना बहुत बेटर रहेगा. ठीक है, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड बैंक लोन.
ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड बैंक लोन। ओके, तो डिवेंचर तुम्हारा है 14% और बैंक लोन है 18%। तो पहला केस में क्या क्या बोला है, 10, 15, 25। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख। तो दिस विल बी द 50 लाख। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में मेरा बोल रहा है 20, 20, 10, 20 lakhs from equity share, 20 lakhs from equity share, 20 lakhs from debenture and 10 lakhs from bank loan. That means 50 lakhs is also there. और थर्ड ऑप्शन में मेरा क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट विल बी फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा ही अमाउंट हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से लेके आएंगे। तो ये मेरा टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज माय टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर करने के बाद मेरा देखो यहाँ पर क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स मेरा रेट ऑफ रिटर्न है 30%। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा कितना जाएगा, 50 लाख। 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30% माने 15 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। 50 लाख का 30% माने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपया। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 15 लाख रुपीस। अब ये 15 लाख लेके हम लोग 3 ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑल्टरनेट 1 जो है तुम्हारा, ऑल्टरनेट 1, ऑल्टरनेट 2 और ऑल्टरनेट 3। ठीक है, तो सबसे हम लोग लिखेंगे PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। उससे लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में 2 है, डिवेंचर इंटरेस्ट और एक है बैंक लोन इंटरेस्ट। ओके, तो डिवेंचर इंटरेस्ट फर्स्ट केस में क्या है देख लो, यहीं से देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट केस में डिवेंचर इंटरेस्ट कितना, 15 लाख। तो 15 लाख का 14%, 15 लाख रुपया मेरा डिवेंचर है, तो 15 लाख रुपए का, ठीक है, 15 लाख रुपए का 14%, तो 15 लाख रुपए का 14% आएगा 2,10,000 रुपया। तो 15 लाख का 14% कितना आएगा, 2,10,000 रुपया। ठीक है, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन मेरा है 25 लाख। 25 लाख का 18%, 25 लाख का 18%, तो 25 लाख का 18% हम लोग निकाल लेंगे। 25 लाख का 18% आएगा 4,50,000। कितना आएगा, 4,50,000। सेकंड केस में मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 लाख मेरा है, तो 20 लाख के ऊपर में 14% आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट। तो अल्टरनेटिव 2 में 20 लाख का पर मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा। ओके, $20 lakhs का 14%, तो 2,80,000 विल बी माय डिवेंचर इंटरेस्ट। और बैंक लोन मेरा कितना है, 10 lakhs। बैंक लोन इज माय 10 lakhs, 10 lakhs का 18%। ठीक है, 10 lakhs का 18% माने 1,80,000। और यहाँ पर कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिव 3 में ओनली वी हैव टेकन ऑल द थिंग्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, सभी चीज इक्विटी शेयर कैपिटल से लिए। तो 15 लाख रुपये से, ठीक है, हम लोग ये माइनस कर देंगे, 2,10,000 माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे 4,50,000। तो मेरा आ गया 8,40,000। 8,40,000 विल बी माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से भी 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख से हम लोग माइनस कर देंगे 2,80,000 और माइनस कर देंगे 1,80,000। तो ये मेरा आ जाएगा 10,40,000। ठीक है, 10,40,000 और यहाँ मेरा आएगा 15 लाख। तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उससे हम लोग टैक्स लेस करेंगे, लेस टैक्स एट द रेट 31.2%। 30% इज माई द कॉर्पोरेट टैक्स
and 4% is my health and education cess. That means 4% of 30, that means 1.2%. 1.2% plus 30%, that means 31.2% is my tax rate. तो 8,40,000 रुपये का 31.2% निकालेंगे. 8,40,000 का 31.2% निकाले तो ये आया 262,080. ठीक है, इसको माइनस कर लिए तो ये आ गया 577,920. इसी तरह 10,40,000 का भी निकालेंगे. ठीक है, इसका भी 31.2%, तो ये आएगा 324,480. ओके, माइनस कर लिए तो फिगर आ गया 715,520. अब यहाँ भी निकालेंगे 15 लाख का. 15 लाख का 31.2%, तो ये आएगा 4,68,000. 4,68,000 माइनस करके आएगा 10,32,000. 10,32,000 मेरा ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 10,32,000 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, 10,32,000 विल बी माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उससे लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट देयर in this problem. Preference dividend is not there, so we will not deduct anything. तो ये मेरा आ जाएगा 5,77,920. ये आ जाएगा 7,15,520 और ये आ जाएगा 10,32,000. ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. अब रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज निकाल लेंगे. रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, 5 लाख. ये लिखना नहीं है तुमको, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज डायरेक्टली. 5,77,920. 5,77,920 डिवाइडेड बाई कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑप्शन 1 में कितना देख लो. ऑप्शन 1 में 10 लाख, ऑप्शन 2 में 20 लाख और ऑप्शन 3 यानी अल्टरनेटिव 3 में 50 लाख. 10 लाख, 20 लाख एंड 50 लाख. 10 लाख, 20 लाख एंड 50 लाख. तो सबसे पहले 5 लाख 70 इसको डिवाइड करेंगे 10 लाख से. ओके, इंटू 100. तो इसको हम लोग 10 लाख से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 577,920 डिवाइडेड बाई 10 लाख परसेंटेज. तो 57.792 आ रहा है. ठीक है, ओके, इसमें कितना आ जाएगा, 715,520 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100. ठीक है, तो इसमें तुम्हारा कितना आ जाएगा, 715,520 डिवाइडेड बाई 20 लाख परसेंटेज. तो इसमें आ जाएगा 35.776%. इसमें कितना आएगा, 10,32,000 है. ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100. ठीक है, 10,32,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100. तो इसमें आ रहा है तुम्हारा 20.64%. 20.64% मेरा रिटर्न आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न. दैट मीन्स अल्टरनेटिव 1 विल बी द बेटर. ठीक है, सो यही हम लोग ऑब्टेन करेंगे. तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल्टरनेटिव, ठीक है, 1 ऑफर्स द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, thus with reference to tax planning, thus with reference to tax planning, okay, company should obtain the same. Company should
opt the same. So alternative one offer will be the best because it will give the return of 57.792%. Second proposal will give you the return of 35.776%, and third will be return give you the 20.64%. This means that the highest return we are getting in alternative one. So alternative one will be the best proposals. Okay, alternative one will be the best proposals. So company should, in terms of tax planning, company should also always opt the alternative one. कंपनी किसको ऑप्ट करेगा? हमेशा अल्टरनेटिव वन को ऑप्ट करेगा. कंपनी किसको ऑप्ट करेगा? हमेशा अल्टरनेटिव वन को ऑप्ट करेगा. उससे तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सबसे ज्यादा आएगा. वी विल गेट द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न. ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. इज देयर एनी क्वेरी? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. अगर कोई क्वेरी है तो बोल सकते हो.